Welcome to the class 12 physics. This is the class 12 physics. And today date is 12 2020. In the previous video, we have seen the practical application of refraction of light, like a real depth and virtual depth. The relation was the normal shift was this was equal to T into 1 minus 1 upon mu, where mu is the refractive index of the medium. When the multiple medium will be there, this is what B means what this is the normal shift. Normal shift. And also we have seen the lateral shift also we have seen. In case of the lateral shift, in case of refraction through slab, rectangular slab, B बराबर something like this. B बराबर T into shape of R sin I minus R, where I is the angle of precedence and R is the angle of refraction, right? And T was the thickness of the glass slab. But here, this T is the real depth. This is the real depth. But D is the normal shift. There it was the lateral shift. Just to remember the formula. The formula based on numerical you have to solve. First of all, you try to solve the examples. Solve example. Then you try exercise. You will enjoy. Right? So today, if there are multiple surfaces, suppose this is the water, refractive index is mu w. This is the glass, refractive index is this one. Another suppose this one is the glycerin, because this refractive index is more than glass. Glycerin, refractive index is mu GL, and total thickness is T1, T2 and T3. And object is placed here. And from a microscope, carrying microscope, you see the normal shift B barabar will be how much? T1, thickness of this part, water part, this is the water part, into 1 minus 1 upon mu W plus T2. थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं. एक्चुअल नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट का T1 into 1 minus mu W 1 by mu W plus T2 thickness of this part, right, into 1 minus 1 upon mu G refractive index of this part plus T3 1 minus 1 upon mu GL T3. Like this formula is there. And on the basis of this formula, you have to solve some problem. And generally, in what is the discussion? I need or JENs one question from this chapter, and on the basis of this formula, certainly will come. Variety of problems you have to solve, so that you can solve it in the final examination in the CBSE board as well as for NEET and JEE Mains and advanced like this. Today we discuss the new concept, that is called total internal reflection. Total internal reflection. What reflection we have seen in class 10?
As a class 12, the reflection portion is limited, but you know the concept of reflection in class 10. Right. So here total internal reflection. Reflection means bounce back of light from a surface. Right. So let us see a medium we have. ये मीडियम है हम लोग का. ये जो है मान लो वाटर है, वो वाटर है, इसी का वाटर बॉर्डर से वाटर फ्लूइड होता है, ये वाटर वाटर के ऊपर में क्या होगा वो एयर. दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज वाटर, एयर का मीडियम इज ओबियस. सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट इन द डेंसर मीडियम at O. This is the source of light. There will be bulb. From here so many light will go. बहुत सा लाइट आएगा. एक लाइट मान लो परपेंडिकुलर जा रहा है. ये स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में. At the interface, its speed will increase. क्योंकि रेयर से डेंसर से रेयर में जा रहा है. ये नॉर्मली जाएगा. नो डिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में तो सवाल ही नहीं. ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्लेक्शन का सवाल ही नहीं. मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है. एक रे ऑफ लाइट, हजारों रे ऑफ लाइट जा रहा है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट जा रहा है, लाखों करोड़ों जा रहा है ना. यहाँ से निकलेगा इधर भी. हमारा आँख है इधर से बाहर पानी के अंदर कौन ले जाएगा. सपोज ये रे ऑफ लाइट को चूज करते हैं, इंसिडेंट हो रहा है. ये बताता है इंसिडेंट हो रहा है. ये क्या है? इंटरफेस. कौन सा इंटरफेस है? दिस इज द इंटरफेस. कौन सा इंटरफेस है? एयर वाटर इंटरफेस. आप यहाँ नॉर्मल की कल्पना करोगे तो टेंशन मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा. लाइट विल गेन अवे फ्रॉम द so this is the angle of incidence, right? Bend away from the normal. This is refraction takes place. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, राइट, ये क्या और बेंड हो जाएगा, पक्का बेंड होगा. लेकिन इससे अधिक अगर करें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाएं, यहाँ पर बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द लाइट ग्रे द इंटरफेस में ही चले जाए ना. So this angle is called what? Critical angle. The angle of incidence at which refracted light passes the interface or travel along the interface, then angle of refraction will be how much? कितना होगा? 90 डिग्री होगा, राइट. यहाँ 90 नहीं होगा, कम होगा, इससे कम होगा, है ना. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना है. साइन आई बाय साइन आई बराबर नहीं होता है. आई बढ़ेगा तो आपको बढ़ना है, मतलब कॉस करेगा. तो व्हेन लाइट travel from denser medium to what? Rarer medium. Then at a certain angle of incidence, the angle of refraction, is कितना? राइट एंगल, मतलब एंगल आर बराबर 90. जिस सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, such angle of incidence is called angle of incidence is called क्या? इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या नाम देंगे इसको? क्रिटिकल एंगल नाम देंगे. and denoted by IC. है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है, और सिंपली C से भी दिखाते हैं. IC लिख दो,
क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है, राइट, या सिर्फ सी लेते हैं तो चलेगा। ओके, आइदर यू राइट IC और C, बोथ विल बी देयर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा किससे, IC से, तब तो यहाँ जाएगा लोड पे, कहाँ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। इससे आगे वाला भी जाएगा तो लोड कहाँ लेकर जाएगा, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लाइट कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, इधर भी तो लाइट आएगा, इधर भी आएगा, नहीं कैसे आएगा, इधर वाला क्या होगा, लोड जाएगा, इधर वाला क्या लोड जाएगा, मतलब इतना पोर्शन में लाइट दिखेगा। ऐसा वाला न्यूमेरिकल भी हम लोग के पास होगा, और इधर वाला पोर्शन में लाइट नहीं दिखेगा, मतलब ये सर्कल जो ट्रांसपेरेंट था अब वो ओपन सर्फेस की तरह काम करना शुरू करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर, और कुछ नहीं है, अपने से कोई नहीं कर सकता है, नेचुरली होता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के अलग चले जाए, इंटरफेस के अलग, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, डिनोटेड बाय IC और सिंपल C। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, है ना। अब कंडीशन क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी मीडियम में लोड जाने के लिए ये वाला लाइट नहीं होगा, लेकिन मिलेगा बाहर, यहाँ तक भी लाइट दिखेगा, इसके बाद वाला सब जला, तो यहाँ पे बल्ब बोर्ड में सब जला दिखेगा बाहर ना। इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फोर PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, PIR। पहला कंडीशन है लाइट को चलना चाहिए, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाना है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना है, रेयर मीडियम, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, PIR संभव है, राइट, वेरी सिंपल। नाउ वी सी द रिलेशन बिटवीन refractive index of the denser medium and the critical angle in which relation is found. The relation between critical angle, अब अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। क्रिटिकल एंगल IC और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ किसका, ऑफ डेंसर मीडियम ना, डेंसर मीडियम जहाँ पर लाइट बना हुआ है, इसके लिए छोटा सा हम लोग ये बना लेते हैं डायग्राम। ये इंटरफेस है, XY इंटरफेस, ये रियल मीडियम है, रियल मीडियम मतलब रियल है, और ये वाटर है, इसका वाटर, राइट, वाटर है, सोर्स यहाँ रख दिए, रियल लाइट आ रहा है, राइट, ये रियल का रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्रिटिकल एंगल कैसे होगा, ये मान लो IC हो जाएगा, लाइट ये एंगल कितना हो जाएगा, और लाइट रिटर्न हो जाएगा, ये सिंपल ही है। तो लाइट जा रहा है कहाँ से, वाटर से जा रहा है, राइट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन रहा है, क्रिटिकल एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पर कहाँ बेस करेगा, इंटरफेस को बेस कर देगा ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, राइट। तो लाइट ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, इधर से जा रहा है, किधर, इधर, ये बेस करके इंटरफेस को, दिस इज द इंटरफेस। तो बाय सेनेंस लॉ
Snell's law, sin I मतलब IC, y कितना sin और कितना r, डिवाइड टू फॉर्मूला म्यू, म्यू क्या करेंगे, लाइट किस मीडियम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, एयर कहाँ से आ रहा है, वाटर से, अब साइन ऑफ IC R का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ये लेस देन 90 है, लेकिन ये अगर क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो R कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करो, रिवर्सिबल इसको म्यू ए डब्ल्यू तो लिख सकते हैं 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए, कैन राइट दिस कैन बी रिटन 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए, refractive index of water with respect to air. This is the absolute refractive index or simple refractive index. ठीक है, ऐसा करेंगे करके क्या करेंगे, साइन कितना हो गया, साइन ऑफ IC और बराबर 1 बाय क्या हो गया, 1 बाय म्यू डब्ल्यू, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डेंसर मीडियम, जहाँ से रह जाएगा, अगर मान लो इधर से हम ग्राफ कर लेंगे तो मूवी कर देंगे, राइट, एंड दिस इक्वल टू IC बराबर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डब्ल्यू कर सकते हैं, या हम लोगों को क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। कोई भी मीडियम होगा जिस मीडियम से लाइट जा रहा है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्रिटिकल एंगल मालूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल मेजर कर लेंगे, कैसे मेजर करेंगे, लाइट को जाने देंगे, जहाँ इरेज करेंगे यहाँ से देंगे, जहाँ पहुँचेगा पूरा लाइन मेजर कर लेंगे, क्रिटिकल एंगल हो गया तो मीडियम टू मीडियम वैरी करेगा, तो मीडियम टू मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वैरी करेगा। ये वाला है, इससे बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करेंगे, जेईई मेंस वगैरह पूछता है और नीट में पूछता है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल विल सॉल्व फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, राइट। तो ये न्यूमेरिकल है, द न्यूमेरिकल है, ये IIT में पूछा है और इस बार नीट में आने की संभावना है 2021, ये मेरा गेस है। तो ये प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम देख करके हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको बना हुए हैं। This problem was asked in the IIT, right? ये क्वेश्चन है, आज ये IIT, है ना, program for NEET and JEE मेंस in 2021, 4 मार्क्स ये क्वेश्चन है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हैज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। एक वेसल है, ऐसा वाला पॉट है, ये पॉट, ठीक है, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जो भी लिक्विड है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 का 3 बच गया कितना, 2 6.66 बराबर 1.67 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस मीडियम का, और ये डेंसर मीडियम हो गया। ऊपर में क्या है, कुछ नहीं तो एयर है, पक्का एयर होगा, कुछ नहीं तो एयर है। और क्या हुआ, ये पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, एक आदमी यहाँ से देख रहा है, यहाँ का एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यस, यहाँ से लाइट क्या होगा, बाहर जाएगा, क्या पूरे सरफेस को एलाइटेड कर देगा या कुछ को करेगा, है ना। तो यहाँ से इसका जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, ये डेप्थ है, इतना हाइट है, दिस इज द हाइट, ठीक है।
अब इसको हम लोग सीधे लाइन चले जाएगा आँख पर, राइट। क्वेश्चन को समझ आते हैं। एंड इज एन this is an opaque disc of the radius 1 centimeter float on the surface, है ना। यहाँ पर एक opaque disc दिखता है, एक opaque disc है, ठीक है, ये वाला। तो क्या करना है, और इसका रेडियस है, इस रेडियस इज हाउ मच है, 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। थोड़ा बढ़ा देते हैं और करोगे। द सेंटर ऑफ द डिस्क लाइज इन द वर्टिकली अराउंड द सोर्स O, और सोर्स जो O है यहाँ पर इसका सेंटर है, इसका सेंटर इसी के वर्टिकल पर है, इसका सेंटर राइट, सेंटर इज O, सेंटर इज O, मतलब दिस रेडियस R बराबर 1 cm, इसका मतलब 0.01 मीटर। Now the liquid from the vessel is gradually drained out of through a pipe। इसमें जो है, इससे हम लोग एक तो पाइप लगा देंगे, पाइप लगाएंगे बाहर, अभी तो बंद है, लिक्विड को बाहर निकालना। ये एच का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा नीचे, जैसे जैसे नीचे घटते जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द वेसल ऑफ द सोर्स drained out through a tape? What is the maximum height of the liquid from which the source cannot be seen? जैसे जैसे नीचे जाएगा, ये जो डिस्क है वो भी नीचे आते जाएगा और बहुत पानी घट जाएगा, तो आँख से दिखेगा नहीं कितना हाइट पर। जहाँ पर दिखता है उसकी चर्चा करेंगे, जहाँ पर दिखता है नहीं। तो अब देखो, मान लो ये यहाँ तक दिखता है, रे ऑफ लाइट जाएगा, या नॉर्मल की बात करेंगे, ये इस सरफेस को बेस करता है, ये कौन सा एंगल बन गया, आईसी बना, ठीक है। यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल की बात करेंगे तो ये बेस करके सरफेस को, तब ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये आई है तो ये भी क्या होगा, आईसी होगा, ये भी क्या होगा, आईसी होगा, राइट। तो देयर इज रिलेशन बिटवीन, लेकिन क्या इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है। रिलेशन क्या होगा, साइन आई सी बराबर क्या होता है, 1/μ। बट यहाँ एक देखो, दिस इज कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, इसका ये 90 है, तो इस 90 नो, तो ये हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये ले रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, एस। अब देखो यहाँ पर साइन आईसी का वैल्यू क्या होगा, साइन आईसी बराबर, साइन आईसी माने यहाँ पर ये डिस्क दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा, आई कम साइन आईसी बराबर परपेंडिकुलर मतलब ओए, वाई क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब कितना, एस ए, राइट। ओए तो मालूम नहीं है, ये वाला मालूम है, ओएस मालूम है, तो ओए कैसे मालूम करेंगे, या ये हाइपोटेनस जो है इसको हम लोगों को हटाना है, तो हाइपोटेनस हटेगा कैसे, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, आईसी बराबर ओ ए रहने दो, वो तो आर है, वो ये कितना है, वाई, ऐसे कितना होगा, ऐसे बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वल टू आर बटे कितना, आर बटे ओ एस, मतलब एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसको सिंपली यहाँ आ जाओ ना, इससे सिंपली क्या आ जाएगा, 1/μ आर बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1/μ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एस का वैल्यू निकालना है, कितना हाइट पर दिखेगा, इसके बाद देखना हो जाएगा, दोनों स्क्वायर करो, आर स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1/μ स्क्वायर, राइट। नौ सॉल्व, एच स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, एच बराबर कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर कॉमन ले लो,
स्क्वायर माइनस 1 कर दो, आर आ जाएगा कॉमन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। आर कितना है बाबू 0.01 अंडर रूट म्यू कितना है 5/3 का कितना होल स्क्वायर माइनस 1। और सॉल्व करके निकालोगे कितना हाइट का लिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन। हम सब प्रैक्टिकली यूज आते हैं, वी विल सी एंड द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।